Hi guys, one of the questions from JE 2005, we are doing it. The moment of inertia of a uniform semicircular disk of mass m and radius r about a line perpendicular to the plane of the disk through the center. So just imagine the diagram like this. This is the semicircle and we can take the axis like this. This is the axis passing through its center. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? We can do one thing. एक डिस्टेंस पे एक यहाँ पे डिस्क काट सकते हैं अब dx थिकनेस की. इसकी थिकनेस कितनी हमने ले ली? dx. Right? Now the basic formula of moment of inertia हम लोग क्या लेते हैं? Summation of dm into radius का स्क्वायर. यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए. तो dm क्या हो गया? जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है ये dm रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ दिस एलिमेंटल थिंग. इसी को हमें पूरा फैक्टर्स के साथ इंटीग्रेट करना है विद द प्रॉपर लिमिट्स. तो इसकी मास कैसे निकालेंगे? पूरे की मास तो गिवन है कैपिटल M और पूरे की रेडियस है कितनी? r. सो मास पर यूनिट एरिया में क्या लिखूंगा? पाई r स्क्वायर बाई 2 मास पर यूनिट एरिया इंटू करेंगे स्ट्रिप जो हमने लिया हुआ है वो उसके लिए कितने लेते हैं? पाई x dx. ये टोटल मास हो गया इनटू रेडियस का स्क्वायर. ये जो हमने स्मॉल एलिमेंटल मास लिया है उसका रेडियस कितनी है? x स्क्वायर. इसी को इंटीग्रेट करना है हमारे को, राइट, विद प्रॉपर लिमिट्स. x वैरीज फ्रॉम 0 टू r. सो टोटल इंटीग्रेटिंग हम फैक्टर मुझे क्या मिलेगा? 2m पाई पाई तो कट गया, r स्क्वायर भी बाहर ले लिया हमने और हमारे को क्या मिलेगा? x क्यूब dx 0 टू r. तो बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए, दैट्स इट. तो हमारे को मिल गया r 4/4 और वी कैन से mr स्क्वायर बाई 2, राइट. सो दिस इज द सेम एज द प्रॉपर डिस्क. तो इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं एज ए रिजल्ट. एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली आ जाए, नीट में आ जाए, किसी एग्जाम में आ जाए, मिड सेट में आ जाए. वी कैन डायरेक्टली मेक इट ऑप्शंस mr स्क्वायर बाई 2 फॉर एनी डिस्क. जस्ट नोट इट डाउन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We have moment of inertia JE 2000 question. A wire of length L and having some linear mass density rho is bent in a circular loop with center O as shown. The moment of inertia of the loop about axis xx dash. This axis is in the plane of the circle only, and this AB is an axis which is parallel to xx dash. So first of all, we must understand this dotted axis AB is passing through one of its diameters. So just imagine an axis like this, right? Perpendicular to the disk and passing through the plane of the center of the disk. So this is your IZ, this is IX, and consider this is IY. IY or IX. So according to perpendicular axis theorem, what we can apply here is Iz is equal to Ix plus Iy, right? This we are going to apply. So first of all, radius is not given. Just find the radius first. So 2 pi r is the total length which is equal to L only. L length is given here. So radius can be written as L by 2 pi. Fine. So, and what about mass? Mass is also not given, but linear mass density is given. So mass we can say rho into L. This is the mass. तो किसी भी सर्कल के हम लोग क्या लेते हैं? mr स्क्वायर थ्रू दिस एक्सिस, सेंटर से जो पास करेगा उसके लिए. तो I Z हो जाएगा वो जो सेंटर से पास करेगा. तो I Z हम लिख सकते हैं मास इंटू r स्क्वायर, एंड मास इज रो L और r स्क्वायर मीन्स L बाई 2 पाई का स्क्वायर. दिस इज IZ. यहाँ डाल देते हैं IZ की जगह रो L क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर. IX और IY दोनों आइडेंटिकल हैं, सो मैं लिख सकता हूँ I प्लस I, दिस इज योर 2I, और यू कैन से 2AB. IAB अभी आइडेंटिकल है, सो आई कैन से IAB इज इक्वल टू
rho L cube upon 8 pi square. This is IAB. Now these two axes are parallel. So moment of inertia about XS dash is equal to IAB plus m into r ka square, because this distance is radius only. So IAB I have rho L cube upon 8 pi square plus mass, this is your mass, into radius means L by 2 pi ka square. You can simplify it and try to compare the answer. Rho is common, L cube is common and pi square is common. So I am left with 1 by 8 plus 1 by 4. तो ये मिल जाएगा मेरे को 3 rho L cube upon 8 pi square. This one is the answer is coming out, right? So just note it down the approach, how to go about this. This is very, very useful information. Note it down. Yeah, let's solve one of the moment of inertia question. This question has been asked in JEE Main 2019. A thin disc of mass m and radius r has mass per unit length relationship is given, which is a variable kind of thing. And its moment of inertia about the axis center perpendicular to the plane is this one. This thing is not given, I have just drawn it. So, let's take, at a distance r, take a small thickness of a strip, right? This strip has got dr thickness, this one. So mass तो variable मिल गया हमारा को, क्योंकि density is variable, mass पे unit area is variable. So dm में क्या लिखूंगा? This is sigma is what? Mass per unit area. Sigma क्या है? Mass per unit, यानी कि mass upon area है, तो into area कर दूं 2 pi r dr. ये तो mass हो गया, right? Mass हो गया ये. तो पूरी मास तो कैलकुलेट कर लें, देखते हैं क्या मिलता है इसमें से. नाउ मैं सिग्मा को लिख सकता हूं के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर हो गया. नाउ आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, राइट? 0 टू कैपिटल आर. सो टोटल मास मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई, के तो बाहर ले लो, आर क्यूब हो गया ये. आर क्यूब डी आर पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आर 4/4, 0 to r. So this is coming out to be pi k r4/2. k को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना है, so मैं यहाँ से k पहले निकाल लेता हूँ. k क्या चीज है? pi k r4/2 आ गया है. That means k की जगह मैं लिखूंगा 2m upon pi r4, है ना? इसको हमने पहले निकाल के अलग रख लिया. Now think about moment of inertia, because we have to find the moment of inertia ultimately. So moment of inertia is integration of what? dm into r square. ठीक है? तो dm into r square ये पूरा हो जाएगा मेरे पास, ये dm है पूरा, और ये कह सकते हैं ये dm है पूरा. तो क्या लिखूंगा मैं? k into 2 pi into r cube into r square. This thing. ये आ गया मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन. अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे 0 to r. So I is coming out to be k into 2 pi r 6/6. k की वैल्यू मैं वहां से लेके डालने वाला हूँ. 2m pi r4 k हो गया into 2 pi r6/6. तो पाई से पाई तो गया, 2 से 3 गया, तो मेरे पास बच गया 2/3 का फैक्टर mr square. So I am getting 2/3 mr square as the answer. Note down the every step, है ना, and try to learn from it how to go about it. Every step is very, very important. Note it down, guys. One of the questions is also asked in JEE Main 19. A circular disc of radius b
एक ऐसा सर्कुलर डिस्क बना लेते हैं, हैज ए होल ऑफ रेडियस ए, सेंटर है, इसका होल है, इसका रेडियस है ए, एंड टोटल बिगर रेडियस इज बी. इट्स मास पर यूनिट एरिया वेरीज, मतलब ये इतना होल है, ये इतना में मास नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतने में मास है. देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. तो यहाँ पे एक्सिस चूज कर लो और आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का फिर से आप स्ट्रिप ले लो, ऐसा गोल सा स्ट्रिप, ये वाला. सो वी कैन राइट डी एम इज इक्वल टू 2 pi r dr, दिस इज एरिया, एंड ये है मास पर यूनिट एरिया. ये क्या लिखेंगे, सिग्मा नॉट बाय आर. ये तो मास हो गया. देन व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये मास, ये कट जाएगा, गेटिंग 2 pi सिग्मा नॉट dr, दिस इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ये वेरी करेगा कहाँ, जीरो, सॉरी जीरो तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ मास है, ए से लेके बी तक वेरी करेगा. दिस इज अगेन इक्वल टू 2 pi सिग्मा नॉट dr मास इनटू के स्क्वायर. ऐसे होता है ना, m इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू आई. सो k इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन. सो आर एयर वेरीज फ्रॉम जीरो टू, सॉरी, a टू b. So just integrate this, we are getting 2 pi sigma naught and r cube by 3. ये क्या मिलेगा मुझे, r cube by 3 a से b तक, और ये मिलेगा 2 pi sigma naught k square b minus a. Got it? Now just 2 pi यहाँ से हटा दो, make it simple. तो ये sigma naught भी हट जाएगा. हमारे को क्या मिलने वाला है, हमारे को मिलने वाला है बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3. दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बी माइनस ए. सो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस वन, राइट, अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर b माइनस ए. तो b माइनस ए कट हो गया, तो k मेरे को क्या मिल गया, ये ऑप्शन आ गया ना, सेकंड ऑप्शन, k स्क्वायर है, नहीं, सेकंड ऑप्शन आ गया, दिस वन. राइट गाइस, जस्ट नोट इट डाउन द स्टेप्स एंड लर्न फ्रॉम इट. This moment of inertia question had asked in IIT JEE Advanced 2005, but it's very easy actually. If your basics is correct, it's very easy. Next level के बच्चे भी आराम से solve कर सकते हैं, right? So just focus on this. From a circular disc of radius r and mass 9m, a small disc of radius r by 3 is removed from the disc. Actually इसका diagram भी given है. Let me draw this. ऐसा है इसका diagram. Diagram is given. इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो है 2r by 3, राइट, और बड़े वाले का रेडियस है r, बड़े वाले का मास है 9. दिस इज गिवन फिगर. दिस मास इज रिमूव्ड, सेंटर का नाम दे दो O. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू O. मतलब इस एक्सिस के अबाउट में हमारे को काम करना है. इस मास को जब हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, so how to find the moment of inertia of the remaining thing about this axis perpendicular to the disk, right? So first of all, mass of this is not given, so let's find the mass of the removed disk. हमारे पास क्या है कि पाई आर स्क्वायर की टोटल एरिया है, इसका मास कितना लिया गया है, 9m. तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं. तो इस एरिया का मास कितना होगा, रेडियस कितना, r by 3 रिमूव कर लिया गया है. So pi r square by 9, pi r square by 9. So this is m only. ये कटा हुआ जो मास है उसका मास m आ रहा है, राइट. तो पहले I लिख लेते हैं फॉर द कंप्लीट वन. पूरे कंप्लीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू O. उसके बाद क्या करेंगे,
इस मास का, मान लेते हैं यहाँ कुछ मास है अभी हटा नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट दिस और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग का आ जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर थिंग कैन बी रिटन एज mr square by 2, mr square by 2, as simple as that. What about this one? इसके लिए भी लगा सकते हैं हम लोग। क्या लिखें इसके लिए मास? मैं I1 नाम दे रहा हूँ, हमने इसका सेंटर O डैश नाम दे दिया, O डैश, O डैश के लिए I1 है तो मैं क्या लिखूंगा, मास m, इसकी मास है कितनी, m, और रेडियस इज गिवन r/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लेकिन तब हम माइनस उसी टाइम कर सकते हैं किसी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, व्हेन दे आर टेकन अलोंग द सेम एक्सिस, राइट। हमने अभी इस एक्सिस के और में काम किया है, नाउ इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी O के अबाउट में, देन ओनली वी कैन डू दिस। सो I1 of O about O, I1 about O, तो I1 O लिख लिया है मैंने, तो लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, m r² 18 हो गया प्लस m 2r/3 का होल स्क्वायर। नाउ I रिमेनिंग क्या होगा, वो होगा I माइनस I1 हो। I मेरे पास निकाला हुआ है ऑलरेडी, 9 mr² 2 माइनस ये करना पड़ेगा मुझे, mr² 18 माइनस m 4r² 9, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को आ रहा है 4mr², तो ना इसको सॉल्व करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, 18 बना दो, यहाँ 9 कर दो, यहाँ 9 कर दो, तो नीचे में मिल जाएगा 18 और ये हो जाएगा 51 mr² माइनस mr² माइनस 8, राइट, माइनस 8 mr²। सॉल्व करके मेरे को आ रहा है 4 mr², जस्ट नोट इट डाउन। सो दिस इज द आंसर, है ना इजी। कोई भी एनीवन कैन सॉल्व इट इफ द बेसिक्स इज राइट। कोई भी नीट का बच्चा हो, बिट सेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस, जस्ट नोट इट डाउन। This question has come already in IIT JEE Advanced 2012. Lamina is made by removing a small disc. This is a small disc and this is the bigger one. So from the bigger disc, a smaller one is removed. So we have to find the ratio of moment of inertia of the remaining system about IP and I0 का रेशियो हमारे को चाहिए। मीन्स इसको हटाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। जस्ट वॉच इट आउट। सबसे पहले थिंक अबाउट दिस, कैपिटल M इज फॉर द बिगर वन, राइट। सो वी कैन राइट पाई 2r², इतने एरिया का मास दिया हुआ है मेरे को कैपिटल M, तो यूनिट के लिए मैं निकाल लूंगा, तो कितना आएगा 4 पाई r²। तो मेरे को चाहिए पाई r² के लिए काम करना है मेरे को, तो ये कितना हो जाएगा मास m/4। सो मास ऑफ दिस डिस्क इज कमिंग आउट टू बी m/4, राइट। तो इसे हटा देते हैं, मास पता लग गया मुझे m/4। सो IO डैश मुझे क्या मिलेगा, हाफ m into r²। This is the very basic formula of any kind of disk and the axis passing through the center perpendicular to the disk. अब मेरे को चाहिए इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा मैं IP, यानी कि IO डैश P के लिए मैं क्या निकालूंगा, मुझे उसके लिए डिस्टेंस चाहिए होगा पहले ये वाला, दिस इज R, दिस इज 2R, तो ये क्या हो जाएगा R√5, दिस वन। सो आई कैन राइट mr² by 8 प्लस m/4 r√5 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे 8 बना दो और यहाँ 2 लगा दो। सो mr² by 8 1 प्लस
ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन, 5 इंटू 2 10, सो 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 एम आर स्क्वायर बाई 8। ये इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट पी। अब रिमेनिंग वाले का क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे आई ओ, दैट इज एम 2r स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आई ओ। अब इसी का निकालो ओ के अबाउट में, एन माइनस इट, राइट। सो आई ओ डैश का निकाल रहा हूं ओ के अबाउट में, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को तो ये पता ही है ऑलरेडी, एम आर स्क्वायर बाई 8 प्लस एम बाई 4 इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 बाई 8 प्लस 2 बाई 8, सो 3 बाई 8, 3 एम आर स्क्वायर बाई 8। तो अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा टोटल आईओ का रिमेनिंग, आईओ फुल था ये, आईओ फुल, और ये आईओ ले लो रिमेनिंग, तो दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर माइनस 3 एम आर स्क्वायर बाई 8, 16 माइनस 3 13 एम आर स्क्वायर बाई 8। ये आईओ हमारा आ गया। नाउ थिंक अबाउट दिस आई पी। तो हमने अभी आईओ निकाला था ये वाला, अब हमें निकालना है आई पी। तो आई पी क्या आएगा मेरे पास, दिस एंटायर थिंग माइनस आई ओ डैश पी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दिस वन, दैट मीन्स एम आर स्क्वायर बाई 8, ये पूरे फिगर का था हमारे पास, पूरे फिगर का माइनस कर देंगे इसका अलोंग दिस, तो वो मेरे को मिलने वाला है, सॉरी एम 2r, just a minute, so this moment of inertia about O is this one, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे IP, so M इंटू 2r का स्क्वायर, तो ये पूरा मेरे को IP मिल जाएगा, एंड इसमें से हमारे को माइनस करना पड़ेगा ये वाला चीज, माइनस 11 एम आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो मेरे को मिल जाएगा एम आर स्क्वायर कॉमन, दैट इज 2 प्लस 4 माइनस 11 बाई 8, 6 माइनस 11 बाई 8, it is coming out to be m r square, and 8 into 6 48 minus 11, 48 में से 11 गया तो कितना होगा 37 by 8, this is your IP। so हमारे को चाहिए IP upon I naught, this one, तो IP upon I naught कर देंगे हम लोग, तो m r square तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 37 by 13, just note it down। Hi guys, this question related to moment of inertia, which is from IIT JEE Advanced 2006. So let's do it today. We have a solid sphere of mass m and radius r having moment of inertia I, right? Solid sphere of mass m. तो solid sphere of mass m का मतलब हो गया, हम लोग फटाफट लिख सकते हैं I is equal to 2 by 5 mr square, right? बेसिक है ये। इसको रिकास्ट किया गया इनटू सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस d, राइट। डिस्क बना दिया गया है, इसमें ना कुछ क्वांटिटी ऐड हुआ है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, दैट मींस मास विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस केस। मास कैसा होगा, m ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दिस वन। सो थिकनेस t का यहाँ कोई यूज नहीं है बेसिकली। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट x इज पासिंग थ्रू एज। ये जो डिस्क बन गया है, ये डिस्क बन गया, हमारे को इसके अबाउट में बोला गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि I रहेगा,
एंड वी हैव टू रिलेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. ये जो अभी बना है वो स्मॉल आर का बन गया है डिस्क. तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज योर आईसी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, और इसका नाम दे दो आईसी डैश. तो हमारे पास आईसी डैश क्या मिलेगा, दिस इज योर आईसी प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज योर आर ओनली. सो वी कैन से एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 एम आर स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा, अगेन आई के इक्वल होगा, यानी कि 2/5 एम आर स्क्वायर. ये हमारे को गिवन है, दिस इज गिवन दैट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर की इक्वल ही होगी. नाउ यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, एम आर स्क्वायर तो एम तो गया, हमारे पास मिल जाएगा दिस इज योर 4/15 आर स्क्वायर, दिस वन. सो आर इज इक्वल टू 2/√15 आर. ये आ गया हमारा आंसर, 2/√15 वाला फैक्टर, 2/√15 यानी कि ये सेकंड ऑप्शन आ गया. प्लीज गाइस नोट इट डाउन, इट्स वेरी वेरी इजी. JEE Advanced 2006 was nothing like. We have a question here. 4 solid spheres, each of diameter √5 centimeter and mass 0.5 kg, are placed with their centers at the corners of a square of side 4 centimeter. The moment of inertia of the system about the diagonal of the square is this. Then find n. First of all, let's draw the diagram. Let's draw the square first. This is the square. 4 spheres we have. This one. 4 solid spheres. So we have to find the moment of inertia about one of the diagonal. This is the diagonal, right? Diameter is given. So let's पहले A के लिए फाइंड कर लेते हैं, फिर B के लिए, फिर C के लिए एंड D के लिए. If we consider this as a diagonal, x और x dash नाम दे देते हैं इसको, then A और C becomes identical for this and B और D are identical. So अगर हम A के लिए फाइंड कर लें तो इंटू 2 कर दें तो C के लिए आ जाएगा. सिमिलरली अगर B के लिए फाइंड कर लें इंटू 2 कर दें तो D के लिए आ जाएगा. एंड वी कैन ऐड देम ऑल to find the entire moment of inertia about this axis, right? Just go about it. So moment of inertia A के लिए क्या देखेंगे, इसका क्या है हमारे पास, this is the diagonal. तो हमारे को पता है 2/5 into mass into radius का स्क्वायर, this one. हमें तो चाहिए x डैश के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0.5 into ये डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? हमारे पास साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पूरा डायगोनल हो जाता है 4√2. अगर डायगोनल में ए साइड अगर मैं ए ले लूं तो दिस इंटायर थिंग द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज a√2. हाफ ऑफ दिस करेंगे a√2/2, तो ये बोलेंगे 2√2. दिस इज 2√2, तो मैं लिखूंगा 2√2 होल स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब IA इज इक्वल टू IC यही लिख लो, राइट? अब फाइंड कर लेते हैं IB. IB के लिए कैसे करेंगे, 2/5, ये तो डायगोनल ही है इसका, सॉरी इसका ये डायमीटर है, तो 2/5 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ID ओनली. सो I अगर मैं टोटल निकालूं तो इसका ट्वाइस प्लस इसका ट्वाइस आ जाएगा हमारे पास, है ना, इजी. तो वी कैन कैलकुलेट दिस वेरी इजीली. सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ IA प्लस ट्वाइस ऑफ IB एंड गो फॉर द आंसर. इट्स क्वाइट इजी. कैन यू इमेजिन, दिस इज JEE Advanced क्वेश्चंस. This question is from JEE 1997. A symmetric lamina of mass m consists of a square shape with a semicircular shape over the edge as shown. Side of a square lamina is 2a. This is a square lamina and this is 4 semicircular ends. Side of the square is given 2a. Moment of inertia of the lamina about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. मतलब this is talking about this axis is 1.6 ma square.
the moment of inertia of the lamina about tangent AB. इसके about में we have to find moment of inertia. So first of all, take this is x-axis, this is y-axis. So apply principle of perpendicular axis. So we can write Iz is equal to Ix plus Iy. Since these two axes are identical, so in place these two are identical. So इसे भी मैं Ix लिख सकता हूँ. So I am getting 2Ix. Iz is given 1.6 ma square. So we can write 1.6 ma square is equal to twice of Ix. Therefore Ix is 0.0 ma square. So this is the Ix. So जब Ix आ गया तो हमारे को क्या लगाना है, सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है. So IAB जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, I इसको बोल लो एक्सेस डैश, I एक्सेस डैश प्लस m इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर. ऑफ कोर्स ये a है तो ये भी a है, ये 2a हो जाएगा दिस वन. सो ये हमने I एक्सेस डैश निकाला हुआ है 0.8 ma स्क्वायर प्लस 4 ma स्क्वायर. तो क्या आएगा 4.8 ma स्क्वायर. है ना इजी. दैट्स नॉट अबाउट कि हमसे होगा ही नहीं. बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं जे एडवांस छोड़ देते हैं, राइट. ऐसा नहीं है. वी कैन डू इट लाइक दिस. नोट इट डाउन. One of my students asked one doubt about moment of inertia. When you guys keep asking, we also attempt to renovate the things, right? We also try to bring some innovations, try to bring some new concepts, right? So just watch it. We have to find the moment of inertia of this. There are four rods. This one, this one, this one, and this one. They are forming a square. This is a rod basically, and we have to find the moment of inertia of this square system with the axis AB, right? So what to do now? Let's choose this axis. इसको नाम दे दो A डैश B डैश. इस एक्सिस के अबाउट में काम करें तो these four rods lie identically, right? तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा. तो I am drawing this like this one. This is the axis B dash A dash, and this is rod of length L at some angle theta with the axis. So एक्सिस से हम डिस्टेंस देखें तो सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, राइट. यहाँ से डिस्टेंस देखें कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा. तो डिस्टेंस कीप ऑन वेरिंग. तो क्या करें हम लोग इस केस में क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे x dx लेंथ का छोटा सा रॉड ले लो, एलिमेंटल. और इसकी मास क्या होगी, ये जो हमने एलिमेंट चूज किया है इसकी मास होगी m/l इंटू डी एक्स, राइट. और हमें चाहिए इस एक्सिस से डिस्टेंस, मान लेते हैं p है, तो इंटू पी स्क्वायर. इसी को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा पूरा इस रॉड का इंटीग्रेशन, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा a डैश b डैश के अबाउट में, राइट. अब ये p क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से p इज इक्वल टू x साइन थीटा, दिस वन. सो मेरे को क्या मिलेगा, m/l. p स्क्वायर का मतलब होगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx. इसको इंटीग्रेट कर देंगे. x यहाँ वैल्यू कर रहा है ना, 0 से लेके l तक, 0 से l तक. सो दिस इज m/l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx. x वैल्यूज फ्रॉम 0 to l. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, m साइन स्क्वायर थीटा l क्यूब बाई 3. यहाँ l पहले से ही है तो l स्क्वायर बाई 3. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वन ऑफ द रॉड. सो देयर आर 4 rods. तो I फॉर 4 rods मैं लिखूंगा 4 टाइम्स m/3 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन. तो ये पूरा आ गया हमारे पास I a डैश b डैश, पूरा आ गया.
नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी के लिए काम करना है हमारे को, तो मैं क्या लिखूंगा, आई ए बी इज इक्वल टू आई ए डैश बी डैश, ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा मेरे को, 4/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4m, चारों का मास ले लो, मास ऑफ द सिस्टम इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होगा, L√2/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो कैलकुलेट एंड गेट इट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैलकुलेशन, आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. यहां तक अगर आपको आ गया, फर्दर यू कैन डू इट इन मिनट्स, इन सेकेंड्स, राइट. और अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला. Just remember this formula. I have circled this, make it a rectangular square. Just remember this for any cases. एग्जाम में बहुत ही फास्ट करना होगा हमारे को, तो we can't do like this. So go for this formula. Please note it down. This is one of the very interesting question. Basically, it was a doubt raised by one of my students. Let's see this. It's a very interesting one. ABCD is a square plate of mass m. A square plate portion DEFG is removed. Find the moment of inertia of remaining plate about the axis passing through AB. Right? So we have to find the moment of inertia when this section is removed about the axis AB. तो यहाँ से एक एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे जा रहा होगा, और एक मैंने एक्सिस ऐसे मान लिया, दिस इज योर आई एक्स एंड दिस इज योर आई वाई, राइट. इफ यू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर प्लेट, व्हाट इज दैट. मान लो ये ए है, ये बी है, तो अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो a इज इक्वल टू बी, ये मेरे को मिल जाएगा ma स्क्वायर बाय 6, राइट. सो इमेजिन दी iz एक्सिस पासिंग लाइक दिस, मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट. सो वी कैन राइट iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. सिंस ix एंड iy आर आइडेंटिकल एक्सिस, सो मैं लिख सकता हूँ 2ix, और iz तो मेरे को अभी अभी पता चला है, iz क्या है, iz है ma स्क्वायर बाय 6, दैट इज इक्वल टू 2ix. तो ix मेरे को पता लग गया, ma स्क्वायर बाय 12, दिस इज 12. दिस टू एक्सिस आर पैरेलल एंड दिस डिस्टेंस इज a बाय 2. तो अब मैं लगाऊंगा IAB मेरे को मिल जाएगा ma स्क्वायर बाय 12 प्लस ma/2 का होल स्क्वायर. तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा ma स्क्वायर बाय 3. ये पूरा लैमिना का है विदाउट रिमूविंग दिस. अब हम इसकी बात करेंगे, तो ये एक्सिस इसके सेंटर पे ले लो, इसका सेंटर है ये, दिस इज योर ix एंड दिस इज योर iy, दिस इज योर ix, दिस टू आइडेंटिकल, अगेन z एक्सिस इज दिस वन. तो ये भी अपने आप में एक स्क्वायर है, सो स्क्वायर वाला ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे इसके लिए भी. तो मैं लिख सकता हूं iz, सेम फॉर्मूला फॉर दिस, iz ट्वाइस ऑफ ix. तो iz में क्या लिखूंगा, इसका मास कितना होगा, m/4. ऑफ कोर्स दिस 4 सेक्शंस आर आइडेंटिकल इन नेचर, टोटल मास इज m, सो दिस इज m/4, 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 m/4. सो मास इनटू उनका जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर, साइड लेंथ क्या है, a/2 का स्क्वायर अपॉन 6. तो ये हो गया iz, दैट इज इक्वल टू 2ix. अब ये 2 को नीचे डाल दो, ये ix आ गया. अब मैं निकालूंगा IAB इसके लिए. तो IAB क्या होगा, ix जो हमने इतना निकाला हुआ है, प्लस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2 प्लस a/4, राइट. ये तो a/2 है और यहां से यहां तक a/4 है. सो आई कैन राइट m इंटू a/2 प्लस a/4 का स्क्वायर. ix हम लोग निकाल चुके हैं, यहां डाल देंगे. तो मेरे पास कैलकुलेट करके आएगा ma स्क्वायर अपॉन 96 इंटू 2 प्लस m a स्क्वायर, 2 और 2 3, 9/16,
दिस वन। तो ये आई ए बी आ गया छोटे वाले का, और ये आई ए बी आ गया हमारे पास दिस वन बड़े वाले का। दिस इज द सेक्शन, स्मॉल सेक्शन, एंड दिस इज द बिग सेक्शन। सो इसको ले लो इक्वेशन 1, इससे ले लो इक्वेशन 2, एंड दस माइनस इट। आई ए बी ऑफ बिग सेक्शन माइनस आई ए बी ऑफ स्मॉल सेक्शन, इन दोनों को माइनस कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 3m²/16। Just note it down and write the steps. Try to understand the steps. Try to understand the concept. You can do any kind of question like this. Please note it down.